Hello everyone, welcome to the third tutorial of linear algebra. In this tutorial, um, we are going to cover, we are going to solve few questions from chap from exercise 7.3 of our recommended book, which is Advanced Engineering Mathematics. And I am going to focus, so this exercise is focused on Gauss elimination method. Basically, this method is used to solve a system of linear equations. If you are already familiar with and you feel comfortable with that, you can skip this tutorial. Otherwise, it's a good idea to see the whole tutorial, and I will at the end give you few sample exercise questions. So let's get started. So we know that a system of linear equations, for example, suppose we have 2x1 uh, 2x1 plus 3, let's suppose by let's say x2 plus I don't know 5x3 is equal to 6. And then let's suppose I have another equation saying 2 rather than 2, let's say 3x1 plus 4x2 plus 7x3 is equal to 2. So I'm writing some system of linear equations. So third equation I have 4x1 plus 6x2 plus 9x3, and finally let's say I have 7. So this system of linear equations we want to solve. By solution means we want to find values of x1, x2 and x3. So the solution means we want to find values of x1, x2, x3 such that if I put these values back into the equations, then left hand side becomes equal to right hand side, right? If I find these values of x1, x2, x3, and this is called right system of and these equations I have written is called system of linear equations, right? So these are some linear equations which you have already solved in high school and is at college level. Then what is the purpose of this Gauss elimination method? The answer to that is, for example, rather than having three equations, imagine you have, I don't know, 100 equation or 200, 1000 equation. Then it will be almost next to impossible to solve these equations by hand, right? We need computers to solve these equations, right? For example, if I have uh, 1 million equations, so how we do that? So in order to solve such equations, we need to build some algorithm in computer, right? I need some algorithm to solve these equations, right? So this algorithm, one way to solve is provided by Gauss elimination method. So in order to explain this algorithm, how we solve these equations using Gauss elimination method, first we need to know few things, few terminologies. Number one, we need to write a matrix which is called coefficient matrix. तो हम ये जो coefficients हैं, constants terms हैं, we will write these terms in a matrix form, right? 3, 4, 6, 5, 7, 9, and this is called, you can name it whatever you want. For example, we can name it A, and this matrix is called coefficient because I have written all the coefficient of equation in this matrix, right? And similarly, I could have written another matrix. um, let's call this
a tilde to differentiate it from A. So what is A tilde? So I will write the same matrix, the coefficient matrix 2, 3, 4, 3, 4, 6, 5, 7, 9, and on top of that what I do is I will write these constant terms here, and by doing so we call this matrix, this extended matrix, as augmented matrix. Augmented matrix, right? Because we have added extra column in coefficient matrix. Augmented matlab extended matrix. So these terminologies we need to know. Just on a side note, this whole system of equations, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको कहा जाता है homogeneous system of equations, homogeneous system of linear equation, right? I will not write all of it. इसको non homogeneous, pardon. अगर तो नॉन होमोजीनियस का मतलब ये है, अगर तो ये राइट साइड पे जो मैंने कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, नॉट कोफिशिएंट्स, नंबर्स, कांस्टेंट्स, अगर ये नॉन ज़ीरो हों तो हम इस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहते हैं, और अगर ये टर्म्स फॉर एग्जांपल इफ वर्ड ज़ीरो तो फिर हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे, राइट? तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो हो जाए, और नॉन होमोजीनियस वो होगी जिसमें नॉन ज़ीरो हो. सो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस वक्त लिखा हुआ है ये नॉन होमोजीनियस है, राइट? सो दीज आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज वी नीड टू नो. कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसको लिखते हैं. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स के साथ, कोफिशिएंट्स के साथ जो कांस्टेंट्स हैं उसको हम मिला के लिखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे. होमोजीनियस वो इक्वेशंस होंगी जिसमें राइट हैंड साइड ज़ीरो होगी, कांस्टेंट ज़ीरो होंगे, अगर नॉन ज़ीरो हो तो नॉन होमोजीनियस होगी. अब हम लेट्स स्टार्ट विद गॉस एलिमिनेशन एल्गोरिथम, राइट? क्या है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड? गॉस एलिमिनेशन मेथड, रिमेंबर एज आई सेड, एक दो इक्वेशंस हो तो यू कैन सॉल्व दिस बाय हैंड, राइट? बट दिस मेथड वर्क्स फॉर एनी नंबर ऑफ इक्वेशंस. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इट सेज, इस एल्गोरिथम का वो ये है कि राइट कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सबसे पहले हमने ये करना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेना है, नॉट कोफिशिएंट, सॉरी. मैं सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इस एल्गोरिथम में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से. सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हम इस पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन दीज ऑपरेशंस इन अ मोमेंट, इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने ट्यूटोरियल वाले में बताया हुआ है. यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है उसके नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, राइट? ये सारे ज़ीरो, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी वो मेन डायगोनल के ऊपर होनी चाहिए. सो हमने करना ये है कि जो भी मैट्रिक्स आए उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है, ऑगमेंटेड को, और फाइनली हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. बैक सब्स्टिट्यूशन अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको एग्जांपल से. बैक सब्स्टिट्यूशन टू गेट रिजल्ट्स. तो आंसर लेने के लिए हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो ये तीन स्टेप्स हैं विच वी नीड टू फॉलो. स्टेप वन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फिर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इसको एचेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं मैट्रिक्स के बनाएंगे, और थर्ड ये है कि हम बैक सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्व करेंगे, राइट?
तो सबसे पहले let's start. I have chosen 3 examples because हम देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल है. तो आई विल एक्सप्लेन दो सॉल्यूशंस in a moment with 3 examples. So let's start with example 1. Example 1 ये है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ये है 4x1 minus 6x2 is equal to, अगर y में x y में लिख लें तो it will be consistent, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, but let's write it anyway. 6x minus 4x minus 6y is equal to minus 11 minus 3x plus 8y is equal to 10. And now see, हम augmented matrix लिखते हैं according to our Gauss elimination method. So let's write augmented matrix. So 4 minus 3 minus 6 8 और साथ हम ये constant terms लिख लेंगे which are minus 11 10. So this is our augmented matrix. So step 1 is done. Step 2 ये है कि हमने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. तो इन ऑर्डर टू डू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें सबसे पहले तो मेन डायगोनल का पता होना चाहिए. एंड रिमेंबर फ्रॉम आवर क्लास एंड ट्यूटोरियल, मेन डायगोनल क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम सेम हो, वो एंट्रीज जिसमें रो और कॉलम सेम हो, जैसे A11 A22 A33 एंड सो ऑन. अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस हमारे पास 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं. तो इस केस में अपर ट्रायंगुलर की डायगोनल जो होगा, सॉरी मेन डायगोनल जो होगा वो ये बनेगा. 4A11 है, ये एंट्री है, और ये A22 है, राइट. अब इसके नीचे जो एलिमेंट्स है उसको ज़ीरो करना है. इन दिस केस वी हैव -3, तो हमने इसको ज़ीरो करना है, राइट. तो लेट्स इरेज इट. अब हमने अपर डायगोनल आइडेंटिफाई कर लिया, विच मीन्स हमने -3 को ज़ीरो करना है. तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसमें पिवट सेलेक्ट करते हैं. पिवट वो जिसके नीचे हमने ज़ीरो करना है. तो 4 के नीचे हमने -3 को ज़ीरो करना है, राइट. अब इसको करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम रो ऑपरेशंस करते हैं, राइट. सो वी विल ओनली डू रो ऑपरेशंस. जो अलाउड ऑपरेशंस हैं वो 3 हैं. कॉलम ऑपरेशंस नहीं करेंगे गॉस एलिमिनेशन में, रो ऑपरेशंस करेंगे. अलाउड जो ऑपरेशंस हैं वो 3 होंगे इसमें. फर्स्ट क्या है, ये क्या किसके लिए, कौन से ऑपरेशन के हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं. तो पहला जो अलाउड ऑपरेशन है वो रो एक्सचेंजेस है. तो हम कोई भी 2 रो एक्सचेंज कर सकते हैं, रो एक्सचेंजेस, इट इज़ अलाउड. सेकंड क्या है, हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सारी रो को, रो विथ सम कांस्टेंट c, राइट. और ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो से नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते. प्लस कांस्टेंट से या माइनस से कर सकते हैं, पूरी रो को कर सकते हैं. कॉलम, रिमेंबर हम कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते. और किसी भी 2 रो को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो रोज़ को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, और एक वक्त में तीनों ऑपरेशंस एक साथ भी किए जा सकते हैं, राइट. तो these are the only allowed operations in Gauss elimination method. अब हमने इसको यूज़ करते हुए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिवाइड करना है. तो माय सजेशन इज़, जो पिवट वाली रो है वो तो चेंज नहीं होनी, उसको तो वैसे ही लिख लिया करें, राइट. तो फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होनी, मैंने लिख ली. अब सेकंड रो चेंज होनी है ना. तो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर भी और यहाँ पे भी आई वुड रिकमेंड आप ऑपरेशन हमेशा लिखें. तो हम रो 2 को चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे? नाउ आई वांट कि -3
की जगह ज़ीरो चाहता हूँ मैं, राइट, और दो रोज़ ऐड करूँ, तो ऐड सिंपली ऐड करूँगा तो ज़ीरो तो नहीं बन रहा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी तरह इस 4 की जगह इफ़ आई कैन मेक इट 3, 4 की जगह 3 बना लूँ, तो फिर मैं R1 और R2 को ऐड करूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं R1 को क्या करूँ, तो अगर मैं R1 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, जैसे इस 4 को मैं क्या कह रहा हूँ, 4 को नंबर 3/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो मैं R1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूँ और उसको R2 में ऐड कर दूँ तो फिर ज़ीरो बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से कर दें, तो ऊपर भी 12 बन जाएगा, नीचे भी, ऐसे भी कर सकते हैं। बट आई प्रेफर टू डू इन दिस वे बिकॉज इस तरह से मेरे लिए एटलीस्ट इट इज़ मोर कॉन्साइज एंड ईजी टू फॉलो। तो अब मैं 3/4 R1, अभी मैंने इसको 3 बना के दिखाया है, तो ये नीचे -3 है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। पिवट के नीचे हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो लेट मी राइट इट इन ब्लू, ये पिवट, राइट। अब हम इस एंट्री पे आते हैं, इसके नीचे हम देखते हैं। अब नाउ वी आर हियर, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज के हम यहाँ पे हैं, तो लेट मी हाईलाइट इट। अभी हम यहाँ पे हैं और ये ऑपरेशन करना है हमने, ये वाला। तो इफ़ यू फॉरगेट ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप। 3/4 R1 की वैल्यू क्या है, -6, हम यहाँ पे हैं, राइट, -6, और उसमें R2 ऐड कर रहे हैं, मीन्स +8 ऐड कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, तो 4 ये आंसर आएगा, ऊपर 3 बन जाएगा, -9/2 +8, बिकॉज 2 मैंने 2 से कैंसिल किया है, राइट। तो 16 बनेगा और -9 निकाल दें 16 में, तो इट विल बी नॉट 17, 7/2, आई विल हैव 7/2, राइट। और अब मैं ये इट इज़ डन, अब मैं यहाँ पे हूँ, राइट, यहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो लेट मी इरेज इट। तो लेट्स डू दिस, यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन करना है, तो आई विल राइट 3/4 R1 की एंट्री -11 है, प्लस उसको R2 में ऐड करना है विच इज़ 10, तो इट वुड बी -33/4 प्लस 10, 40 बन जाएगा, और दिस इज विल बी 7/4, राइट। और मैंने लेट मी चेक, मैंने पिछली कैलकुलेशन में मिस्टेक की है नहीं, बिकॉज माई नोट सेज यहाँ पे -7/2 आना चाहिए, बट लेट्स चेक इट अगेन। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, तो 3/4 -6 +8, राइट, तो ये आ जाएगा -4 यहाँ पे 3 -9/2 +8, right? So 8 2s are 16, yes, it is correct. My notes are not correct. Anyway, alright, चले, we are done. Second step हो गया, because if you see main diagonal के नीचे हमने 0 बना लिया, so upper triangular matrix बन गया. Okay, the third step is if you see back substitution to get results. अब हम back substitution करते हैं. बैक सब्स्टिट्यूशन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं गॉस एलिमिनेशन में। तो ये फर्स्ट काइंड है। कौन सी काइंड है? वो काइंड जिसमें जो एचेलॉन फॉर्म होगी उसमें इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। डायगोनल पे लेट्स से इन दिस केस 4,
और इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, सम नंबर, लेट मी राइट इट बाय सी, कांस्टेंट नंबर 7 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 0, और राइट साइड पे नॉन ज़ीरो नंबर आएंगे 2 4। तो अगर तो नंबर इज इक्वल टू नंबर आए एचेलॉन फॉर्म में, तो फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन। बाकी केसेस की भी मैं एग्जांपल दूंगा, राइट। अभी बस फर्स्ट केस ये याद रखें, जब आप एचेलॉन फॉर्म बना लो तो आप देखो कि जो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाली साइड है उसमें नॉन ज़ीरो रो होनी चाहिए, और वो अगर नॉन ज़ीरो नंबर के इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए इफ़ यू रिमेंबर, ये y वेरिएबल है, ये x है, तो मैं ये वाली रो लिख के दिखाता हूँ। ये होगी 7/2 y इज इक्वल टू 7/4। अच्छा, तो ये x वाला कॉलम था, ये y वाला कॉलम था। नाउ द क्वेश्चन इज, बैक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं इसको? बैक सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हम जो लोएस्ट रो होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन फिर ऊपर वाली रो में पुट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। 7 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, इफ़ आई डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड देन y इज इक्वल टू 2 उधर ले जाएं, 2/4 विच इज़ 1/2, तो y 1/2 आ गया हमारे पास, राइट। अब हमने x फाइंड करना है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड x I need to write this equation which is 4x minus 6y is equal to minus 11, right। और y हमें पता है 1/2 है, तो 4x minus 6 1/2 minus 11, right। so 4x minus 3 is equal to minus 11, तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 4x minus 8 and x is equal to -2, right। so these are the two solution, y 1/2 होगा, x -2 होगा। तो remember again, 3 steps हैं गॉस एलिमिनेशन के। कौन कौन से 3 हैं? नंबर 1, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाया और बैक सब्स्टिट्यूशन की तो रिजल्ट्स आ गए, राइट। और मैंने बीच में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर जो स्टेप 2 के बाद जो एचेलॉन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ये वाला, इसमें लेफ्ट साइड पे भी कांस्टेंट हो और राइट साइड पे भी कांस्टेंट हो, यानी नॉन ज़ीरो नंबर इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो नंबर, तो फिर एक सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये हो सकता है इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, तो लेट मी गिव यू अनदर पॉसिबिलिटी कि एचेलॉन फॉर्म में आई होप सो कि इससे क्लियर हो जाएगा व्हाट आई मीन। तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन 2x1 plus y minus 3z is equal to 8, 5x1 plus 0y, which means y is not here, so I am going to erase it, तो y नहीं है इसमें, and plus 2z is equal to 3, and finally 8x1, third equation, let me erase it, I want to write it here, 8x1 minus y plus 7z, so this is 2, my writing is not that pretty, 2z is equal to 0. So this is the set of linear equation which we want to solve. तो गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है,
So let's write it together. Coefficients लिखें 258 258 प्लस 1 ज़ीरो है यहाँ पे -1 +1 0 -1 -3 to 7 -3 to 7 and then I need to write augmented matrix 8 3 0. So first step is done. ठीक है जी. Gauss elimination. Do you remember the second step? क्या करेंगे हम सेकेंड स्टेप के अंदर? what we will do is कि हम इसकी upper triangular matrix बनाएंगे, right? Okay, so let's do it together. तो R1 तो नहीं चेंज होनी, राइट? सो इन एग्ज़ाम इन क्वेश्चंस में यू कैन डू मिस्टेक्स ऑफ कैलकुलेशंस. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स बी वेरी केयरफुल. तो अब क्या करेंगे? अब हम जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं विच आर दीज, राइट, 2 0 7, राइट, ये मेन डायगोनल पे. तो अब हमें पता है मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स कौन से हैं. तो अब पिवट जो होगी जिसके नीचे हमने ज़ीरो करने हैं वो 2 है. तो लेट्स मेक दिस 0 5, राइट. इसके नीचे हम ज़ीरो करते हैं. तो क्या करें हम? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक. सो व्हाट वी विल डू कि हम R2 में क्या चेंजेस करेंगे. सो व्हाट आई वांट इज़ के ऊपर जो है -5 बन जाए, राइट. तो मैं ऐसे करता हूँ कि -5 बनाना है. -5/2 R1 को -5/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको R2 में ऐड कर देते हैं. तो जैसे अभी हम करके देखते हैं, ये 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो -5/2 R1 की वैल्यू 2 है और उसको मैंने 5 में ऐड करना है. तो 2 से कैंसिल होगा, -5 + 5 0 हो जाए, राइट. सो दिस इज़ डन. आई विल इरेज दिस. अब हम यहाँ पे, तो अब यही सेम प्रोसेस करना है. -5/2 R1 की वैल्यू इस वक्त 1 है और R2 की वैल्यू ये देखो 0 है. तो -5/2 आ जाएगा, राइट. इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो लेट मी इरेज दिस ताकि हम यहीं पे सॉल्व करते जाएं और एंट्रीज लिखते जाएं. तो इस तरह स्टेप वाइज करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी हमसे. -5/2 होपफुली R1 की वैल्यू -3 है और R2 की वैल्यू 2 है. तो ये -5 है, राइट. तो इट विल बी 15/2 और 15/2 + 2 4 19/2, right. So this will be 19/2. You can check by yourself. अब हम उसको रेज करते जाते हैं और अगला एलिमेंट लिखते जाते हैं. नाउ आई एम हियर, राइट. तो इसमें -5/2 R1 की वैल्यू इस वक्त 8 है और R2 की वैल्यू इस वक्त 3 है, राइट. तो 2 4s 4 5s are 20, -20 + 3 70. तो यहाँ पे 17 आ जाएगा. And don't forget the minus sign because this is -20, तो यहाँ पे -17 आना चाहिए. Okay, so we are done with R2. ये हमने ऑपरेशन किया. तो अब हम R3 पे जाते हैं. What we need to do with R3? This is more easier. इस पिवट के नीचे हमने ये 0 कर लिया. अब इसको 0 करना है. तो आई नीड 8 हियर, राइट. 2 की जगह 8 चाहिए. तो आई विल मल्टीप्लाई विथ -4 टाइम्स R1 ताकि 8 बन जाए और उसको फिर R3 में ऐड कर देंगे.
So I will do these operations. So I know this will term will become 0. This is easy. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो -4, ऑल दो इट्स ईजी, लेकिन मैं हर स्टेप आपको करके दिखाता हूँ. 1, एग्जाम में मिस्टेक ना करो आप. और उसको 3 में ऐड करना है, विच इज़ -1. तो -4 -1 -5, यहाँ पे -5 आ जाएगा. अब हम -3 पे हैं. तो -3 वाली टर्म कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल राइट -4, इस वक्त रिमेंबर -3 पे है. -3 प्लस उसको और 3 में ऐड करना है, विच इज़ 7. तो 4 3 12 प्लस 12 प्लस 7 19. तो प्लस 19 आ गया. फाइनली वी आर एट 8 और नीचे 0 है. दिस टर्म इज इजी, बट लेट्स डू व्हाट वी आर डूइंग, राइट. -4 R1 इस वक्त 8 है और उसको R3 में ऐड करना है, विच इज़ 0. सो -32 आएगा आंसर. ओके, सो दिस स्टेप इज़ डन. हमने एक पिवट के नीचे 0 कर लिए हैं. अभी तक हमारी एचेलॉन फॉर्म नहीं बनी. अब हमने इस पिवट के नीचे 0 करने हैं एंड देन वी आर डन. ऑलराइट, इन ऑर्डर टू डू दिस आई कैन सी दैट एक स्टेप हम कर लें ये कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. इट इज़ अलाउड इन रो ऑपरेशन. रिमेंबर, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी रो को किसी कांस्टेंट से. व्हाई आई एम डूइंग दैट? -3, let me write it and then I will tell you why I am doing that. तो यहाँ पे मैं 8 ब्लैक से ही यूज़ करता हूँ. तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 0 -5 19 -34. ये मैंने इसलिए किया कि ये नीचे 2 ख़त्म हो जाए. इनफैक्ट मुझे ये करना चाहिए था कि -2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था. तो ये प्लस हो जाएगी टर्म, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, बिकॉज नीचे वाली टर्म 0 करनी है ना. नीचे -5 है तो ऊपर +5 बना लिया है मैंने. 0 -5 ताकि हम ऐड करें सिंपली और अगला स्टेप कर लें. ठीक है जी. R2 को हमने -2 R2 कर दिया. नाउ रिमेंबर आर पिवट इज दिस +5. इसके नीचे हमने 0 करना है. एचेलॉन फॉर्म बनानी है. 2 1 -3 0 5 -19 8 34 और R3 चेंज होगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज R3 में R2 को ऐड कर एंड आई विल से इट इज़ इक्वल टू, जो चेंजेस होंगी वो R3 में होंगी. तो R2 को R3 में ऐड कर रहा हूँ मैं. ओके, लेट्स डू इट. 0 + 0 0, 5 - 5 0, -19 ये भी 0 हो जाएगा और ये +2 आ जाएगा, राइट. एंड नाउ सी कि क्या बन रही है एचेलॉन फॉर्म. स्टेप 3 बैक सब्स्टिट्यूशन आ गई. तो इफ़ यू सी, हमने पिछले में कहा था कि कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट नॉन ज़ीरो, बट इन दिस केस इफ़ यू सी 0 इज इक्वल टू 2 आ रहा है. तो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए आई वुड राइट दिस, राइट. 0 जी को मैं इस कलर में लिख लेता हूँ. 0 जी इज इक्वल टू 2. तो इज़ दैट पॉसिबल कि जी की जो भी वैल्यू हो उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 0 आता है. बट ये इक्वेशन हमें बता रही है कि आंसर 2 आता है. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो जब 0 इज़ इक्वल टू सम नंबर आए तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन. इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इन इक्वेशंस का. नो सोल्यूशन एग्जिस्ट. ओके. तो सेकंड टाइप गॉस एलिमिनेशन में वो है जिसमें 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर आएगा. फर्स्ट में ये था कि सम कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. अब हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस ट्यूटोरियल. ओके, व्हाट इट इज,
let me see my notes. Okay, so the example is following. I have okay, what I have is minus 2y minus 2z is equal to minus 8, 3x plus 4y minus 5z is equal to 13. Solve these equations, right, using Gauss elimination method. Pause the video and try to solve by yourself and see what happens. So the algorithm, Gauss elimination algorithm जो हमने study किया, it says first write the augmented matrix. तो इसमें if you see यहाँ पे 0 है, तो I would write 0 minus 2 minus 2, नीचे क्या है 3 4 minus 5, and on the right hand side I have minus 8 13. So first step is done. We have written augmented matrix, and the second step says make it upper triangular matrix. मतलब मेन डायगोनल के नीचे हमने 0 बनाना है, तो ये एंट्री 0 होनी चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज हमारा जो पिवट है इन दिस केस 0, वो 0 नहीं हो सकता बिकॉज हम फिर इसके नीचे 0 नहीं बना सकते, राइट. तो व्हाट वी कैन डू हियर टू अवॉइड दिस कि पिवट 0 नहीं हो सकता, हम रो एक्सचेंज कर लेते हैं. तो R1 एंड R2 को एक्सचेंज कर लिया. तो दिस इज ऑल्सो अलाउड. 3 4 minus 5 0 minus 2 minus 2, और इधर आएगा 13 minus 8, right. Now let's see कि is this so let me write it in blue. So is this reduced echelon form? Is this upper triangular matrix? Yes it is, because by definition ये मेन डायगोनल के नीचे हमने सारे 0 कर लिए हैं, ठीक है. तो मेन डायगोनल क्या है, A11 A22, ये मेन डायगोनल है. So by swapping the row we have changed the matrix into echelon form या upper triangular matrix. तो we are done with second step. Let's find the solutions. अब देखें इस केस में कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, राइट. तो अब क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इन दिस केस या नहीं करता. सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग. सो इस केस में प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको लिखूं, बैक सब्स्टिट्यूशन का तीसरा स्टेप करूं, तो इक्वेशन लिखूंगा मैं -2y, बिकॉज ये y का कॉलम है, -2z इज इक्वल टू -8, और दूसरी जो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी वो होगी 3x plus 4y minus 5z is equal to 13. Now the problem here is हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, तीन है, x y z अननोन जो है, और इक्वेशंस 2 हैं. ऑलराइट. सो इन दिस केस वी कैन नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन. तो हमारे पास यूनिक नहीं हो सकता सोल्यूशन, यूनिक पॉसिबल नहीं है, बल्कि इन दिस केस वी विल से हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशंस है. इसका मतलब क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन इट. इन्फिनिट सोल्यूशन क्या है? बैक सब्स्टिट्यूशन, ये पहली इक्वेशन थी, राइट. तो इस केस में अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँ, मैं -2 से डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को,
तो आई विल हैव y प्लस z इज इक्वल टू 8। तो इस केस में y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? y की वैल्यू होगी 8 माइनस z। सो वी विल से z इज़ अ फ्री वेरिएबल, मतलब z की कोई भी, इसको फ्री कहते हैं या ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट, हम z की कोई भी वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, बिकॉज इक्वेशंस हमें वो नहीं कर रही, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। तो हम z की कोई भी वैल्यू अपने, जैसे z की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, z की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, और फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, राइट? ओके, z की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 8 आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू 8 है, रिमेंबर, लेट मी राइट y वैल्यू 8 इज इक्वल टू 13, राइट? ये इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x, 8 4 आर 32, और उधर जाके माइनस 32 हो जाएंगे, प्लस 13। तो कितना आंसर आएगा? 21? No. So okay, so I'm a bit dizzy at this point, so it will be minus 19, right? Yes, minus 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी minus 19/3। so for value of z is equal to 0, हमने y की वैल्यू निकाली, फिर x की निकाली, बट यू could have asked कि z की वैल्यू 0 क्यों मैंने पुट की है? I could have put like z is equal to 1, z is equal to 2, -1 -2, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता था, और फिर x और y की वैल्यू आएंगी, राइट? और ये वैल्यूज़ x और y z की पुट करो आप यहाँ पे, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशंस को, राइट? ऑलराइट, सो कितनी z की वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी इन दिस केस? इन दिस केस वी हैव इन्फिनिट वैल्यूज़। तो इन शॉर्ट तीन तरह से, नाउ लेट मी समराइज, गॉस एलिमिनेशन मेथड से जो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक जब तब होगा जब ये वाली फॉर्म बनेगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ये, और इधर नॉन ज़ीरो नंबर्स आएंगे, लेट्स से C1 C2 C3 सम नंबर। तो इधर अगर नंबर आए कोई, लेट्स से नॉन ज़ीरो नंबर 2, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, राइट? अगर ये वाली फॉर्म बने, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वंस अगेन एचेलॉन फॉर्म में, और यहाँ पे 0 हो और इधर भी 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बने और इधर नॉन ज़ीरो नंबर है, लेट्स कॉल आई डोंट नो C, कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, राइट? और इधर 0 बन गया है, तो मैं अपने कलर्स वो यूज़ करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। इधर नॉन ज़ीरो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे CN, और इधर 0 है, तो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट? तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। तो आपने चेक ये करना है एचेलॉन फॉर्म बना के कि अगर नंबर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा है तो एक सोल्यूशन होगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो इन्फिनिट होगा। या उस ये केस भी बन सकता है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी, अननोन ज़्यादा होंगे। जैसे इस केस में जो इक्वेशंस हमने बनाई है, ये लिखी हुई हैं, 2 इक्वेशंस थी, 3 अननोन से, तब भी इन्फिनिट सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन कब होगा? जब 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा। तो रिमेंबर, 0 इज इक्वल टू 0, इन्फिनिट सोल्यूशन, some number is equal to constant, infinite solution, 0 is equal to constant, no solution. So at the end I would say,
Can you try to solve these equations and find out whether you have one solution, infinite solutions, no solution? तो अगर हैं तो वो कौन से हैं? Try yourself and see what are the answers. So let me end the video here.